Test your understanding one. A company generates $10,000 per month excess cash, which it intends to invest in the short-term securities. The interest rate it can expect to earn on its investment is 5% per year. The transaction cost associated with each separate investment funds is constant $50. A question: what is the optimum amount of the cash to be invested in each transaction? How many transactions will arise in a year? The cost of making those transactions per year, and opportunity cost of holding cash. That is the question. Please go through the question. So, we are required to use the Baumol's model for the purpose of doing answer. Try to calculate answer of all the 4 questions and put your answer in the chat box. So friends, we understand that the formula is 2 into A. A stands for the annual expense. It is 10,000 into 12. तो ये पूरे साल का हो गया. Into O, cost per transfer is 5050. Divided by 5%, that is 0.05. जो भी आंसर रहेगा उसका अंडर रूट करेंगे. That is what we understand is the optimum amount of the cash to be invested in each transaction. चलो, write an answer. 2 into A into O divided by rate of interest. और उसको हम लोग अंडर रूट करेंगे. 2 into A is 10,000 into 12 into O is 5050 divided by rate of interest is 0.05 और उसका हम लोग अंडर रूट करेंगे. So in that case the answer is 10,000 into 12 पूरे साल का खर्चा आ गया into 2 into 50 डिवाइड बाय 0.05 और उसका अंडर रूट करेंगे. 15,491.93. Second question: how many transactions will arise in a year? That is a question. तो बी क्वेश्चन का आंसर उसमें हम लोग लिखेंगे number of transactions, that is A divided by transfer size. A stands for annual expense 10,000 रुपये into 12 divided by transfer size is 15,491.93. That comes to 7.75. Next, what is the cost of making those transactions? So see, total transaction cost, it is A divided by transfer size. That will give us number of transfers into O, cost per transfer. 10,000 into 12, 1,20,000 divided by 15,491.43, 93 into $50. So 7.75 into 50. That is
$387.5. D answer. Total carrying cost. Transfer size divided by 2 into rate of interest. This is the transfer size. 15,491.93 divided by 2, यानी एवरेज कैश बैलेंस हो गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. So 15,491.93 divided by 2 into 5%. It would be very near to the total transfer cost क्योंकि हमने इकोनॉमिक लॉट साइज ही रखा है. So it is 387.30. ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर्स क्यों लेते हैं. क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होता है कि सर फ्रैक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर्स थोड़ी हो सकते हैं, पर क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ. टू एक्सप्लेन दैट मैं थोड़ा सिंपल फिगर्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए. सपोज कि एनुअल एक्सपेंस है 1 लाख, हमारा ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज ऑफ द फंड है 40,000. तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने आएंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, दैट कम्स टू 2.5. दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन अ ईयर, ऐसा हम लोग समझते हैं. देखो बेसिकली क्या होगा कि जो पहला साल होगा ना, उस पर हमको 3 बार फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे. बिकॉज वी अंडरस्टैंड लॉजिकली लाइक दिस कि जो 1 लाख का खर्चा है डिवाइड बाय 12, यानी हमारा मंथली खर्चा है 8,333. सो 40,000 डिवाइडेड बाय 8,333. सो हमने क्या किया, 4.8 मंथ्स के लिए फंड्स ट्रांसफर किया, अगेन 4.8 मंथ्स के लिए फंड्स ट्रांसफर किया, अगेन 4.8 मंथ्स के लिए ट्रांसफर किया, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या होता है, 12 से कम है. यानी पहले साल क्या होगा, पहले साल हमको 3 बार फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, पर उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी बार हमको सिर्फ 2 बार ही फंड्स ट्रांसफर करना पड़ेगा. इन अ वे दैट से ओवरऑल 2 साल में क्या होगा, 5 बार फंड्स ही ट्रांसफर होगा. इसलिए यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर साइज, दैट इज से द ट्रांसफर्स लेते हैं. बिकॉज नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर हैविंग अ पॉइंट दैट सर इसको हम लोग फुल इंटीजर नहीं करेंगे, नहीं उसको फुल इंटीजर नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी एक्सेस नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पहले साल होता है, दैट हेल्प्स अस से टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A company faces a constant demand of the cash totaling 2 lakhs per year. It replenishes the current account, which pays no interest, by selling constant amount of the treasury bill, which are held as investment earning 6% per year. The cost per sale of the treasury bill is fixed $15. What is the optimum amount of the treasury bill to be sold each time as injection of the cash needed in the current account? How many transfers would be needed, and what will be the overall transaction cost be? That is the question. So try to give answer of the question in the chat box. So we will be having the answer to be calculated like this. Optimum transfer size is equal to 2 into A into O divided by rate of interest, और उसका अंडर रूट किया जाएगा. So it is
2 इंटू ए, हमको दे रखा है पूरे साल का खर्चा है 2 लाख, कॉस्ट फॉर ट्रांसफर है 15 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। उसका क्या करेंगे अंडर रूट? सो 2 इंटू 2 lakhs इंटू 15 डिवाइड बाय 0.06, उसका अंडर रूट, दैट कम्स टू $10,000। उसके बाद हमको कुछ आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि हमको दे रखा है नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इन अ ईयर। इट इज ए डिवाइड बाय ट्रांसफर साइज। ए का वैल्यू कितना है 2 लाख, डिवाइड बाय ट्रांसफर साइज कितना है, ट्रांसफर साइज है 10,000, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कितने हो जाएंगे 20। उसके बाद टोटल ट्रांसफर कॉस्ट, वी अंडरस्टैंड दैट्स द नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इनटू कॉस्ट पर ट्रांसफर। कॉस्ट पर ट्रांसफर है $15, it is 20 into 15, that comes to $300। उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट, it is transfer size divided by 2 into rate of interest। ट्रांसफर साइज है 10,000 डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज बैलेंस हो गया, into rate of interest, that is 6%। that comes to $300। the Miller-Orr model of the cash flow, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। What is the optimum amount of the treasury bill to be sold each time? वो आंसर आ गया 10,000। An injection of the cash needed in the current account, that's done, that is optimum transfer size। How many transfers will be needed? 20। And what will be the overall transaction cost? तो लिख देते हैं, overall transaction cost, it is total carrying cost plus total transfer cost, so it is 300 plus 300, that comes to 600। Next is Miller-Orr model of the cash management। पहले इसका थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। देखो, मिलर-ओर मॉडल ऑफ द कैश मैनेजमेंट का कहना कुछ ऐसा है कि we do not make an assumption that the expenses of the company are evenly spread throughout the year. Rather we accept that the expenses of the company may not be evenly spread throughout the year। ऐसा उनका सबसे पहला कहना है। उनका कहना ऐसा है that say we advise a company to determine 3 types of cash balance limit। उन्होंने ऐसा बोला that आपको 3 टाइप का कैश बैलेंस का लिमिट डिसाइड करना है। The first is given a name as upper limit, second is given a name as return point, and the third is given a name as lower limit। This is upper limit, this is return point, and this is lower limit। कैसे डिसाइड करना वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। On x-axis we take the time period, and on y-axis we take the cash balance।
we will keep a cash balance in between the lower limit and the upper limit, and with that say we will start implementing the theory. हम लोग क्या करेंगे, we will keep a cash balance which is in between the lower limit and the upper limit, and say we will start, that is start implementing the theory. Suppose हम लोग रिटर्न पॉइंट के जितना बैलेंस रखते हैं and we start implementing the theory. Now डेली बेसिस पे क्या होगा, डेली बेसिस पे हमारा जो कैश बैलेंस है ना उसमें वेरिएशन आएगा. The cash balance will have a variation like this. अगर at any point of time cash balance increases to the upper limit, तो उनका कहना ऐसा है that say we should make investment of the excess cash in the liquid securities so that the balance reduces say to the return point. Sir, excess cash कितना है? Excess cash is difference between upper limit and the return point. उन दोनों का बीच का जो बैलेंस है that is considered to be the excess balance, और उसको हमको क्या करना है, उसको हमें इन्वेस्ट करना है in liquid securities. Again we continue with the business. तो हमारा कैश बैलेंस में क्या ऐसा वेरिएशन आएगा? Now at any point of time it may happen that say the balance reduces to the lower limit. तो उस केस में क्या करने का, we should say redeem the investment which we have made in the liquid securities for such an amount so that the balance increases say again to the return point. Again you continue with the business. तो उसमें आपका कैश बैलेंस में ऐसा वेरिएशन आएगा. अगर आपका बैलेंस से द लोअर लिमिट के ऊपर और अपर लिमिट के नीचे है, इन अ वे दैट आपका कैश बैलेंस यहाँ कहीं पे भी है, then in that case we will not, that is we are not required to enter into any transaction, neither we have to make any investment nor we have to redeem the investment. ऐसा उनका कहना है. फ्रेंड्स यहाँ पे अपर लिमिट रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ. Return point is calculated as lower limit plus 1/3 spread, ऐसा करके उसका फॉर्मूला है. And as far as the upper limit is concerned, it is calculated as lower limit plus spread. That is what the formula is. जो lower limit होता है ना, वो कंपनी को खुद को डिसाइड करना पड़ता है based on its like the intuition, based on the kind of experience that they have of doing business. उनको बिजनेस करते करते क्या लग रहा है कि उनको कितना कैश बैलेंस का जरूरत पड़ सकता है, उस हिसाब से they are required to keep the lower limit. लोअर लिमिट के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है. As far as the spread is concerned, spread is calculated using a formula like this: 0.75 into variance. वेरिएंस का मतलब क्या होता है? इट इज लाइक द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल इनटू ओ कॉस्ट पर ट्रांसफर डिवाइडेड बाय, अगर ये वेरिएंस डेली कैश फ्लो का है, वेरिएंस डेली कैश फ्लो का है, तो डिवीजन में लिखा जाएगा डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट. और ये जो भी आंसर है उसका हम लोग क्यूब रूट करते हैं रेज टू 1/3. ऐसा करके हमको स्प्रेड का कैलकुलेशन करना है. एक बार स्प्रेड का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे और उसको हम लोग लोअर लेवल में ऐड करेंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. दैट इज इंटू 3 करेंगे, आई एम सॉरी इंटू 3 करेंगे और उसके बाद हमारे पास स्प्रेड आएगा. दैट इज द वे द स्प्रेड इज कैलकुलेटेड. आई जस्ट रिवाइज द वर्किंग. मिलर और मॉडल का कहना ऐसा है, एक, हम लोग ऐसा अज्यूम नहीं करते कि एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इज इवनली स्प्रेड. दूसरा, उनका कहना ऐसा है कि कंपनी को 3 टाइप का लिमिट डिसाइड करना है: लोअर लिमिट, रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट. उन्होंने ऐसा बोला दैट से आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कोई भी एक बैलेंस रख के यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग दिस थियरी. नाउ यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द कैश बैलेंस. अगर कैश बैलेंस आपका अपर लिमिट तक चला जाता है,
then you have to bring it down set to the return point by investing the excess cash in the liquid securities. Reverse, अगर ऐसा होता है that से आपका जो बैलेंस है that decreases set to the lower limit, तो आपको redeem करना है investment and you have to bring the cash balance to the return point. Lower upper limit का calculation कैसे होता है? It is lower limit plus spread. Return point का calculation कैसे होता है? It is lower limit plus 1/3 into spread. Spread का calculation कैसे होता है? 0.75 या तो 3/4 भी लिख सकते हैं into variance into cost per transfer divided by variance अगर daily cash flow का है that is daily cash balance का है then in that case से divided by daily rate of interest उसका cube root करेंगे और उसको 3 से multiply करेंगे. Let us read the content now. Miller-Orr model controls irregular movement. Irregular movement का मतलब ये है that say they do not make an assumption कि expenses of the company is evenly spread throughout the year. That is what we understand is irregular movement. By setting of the upper and the lower control limits on the cash limit, that is cash balance. तो देखो ये क्या लोग that is ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक हम लोग upper limit decide करेंगे और दूसरा हम लोग lower limit decide करेंगे. Miller-Orr model is used for setting the target cash balance. It has the advantage over the Baumol's model of incorporating the uncertainty in the cash inflow and cash outflow, so may be more appropriate than the Baumol's model when the cash flow is erratic and the cash flow is unevenly distributed throughout the year. The diagram below shows how model works over the time. The model sets the higher limit and the lower limit. It is H and L, जो मैंने UL और LL लिखा था. And the target cash balance equal to Z. When the cash balance reaches to H minus Z, dollar are transferred, say from cash to the marketable securities. That is, the firm buys H minus Z dollar of the securities. यानी Z हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या है, रिटर्न पॉइंट है. यानी अगर बैलेंस आपका ऊपर चला जाए देन इन दैट केस यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन से बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द एक्सेस कैश, ऐसा उनका कहना है. सिमिलरली व्हेन द कैश बैलेंस हिट्स एल यानी कि लोअर लिमिट, तो उसमें उनका कहना ऐसा है दैट से जेड माइनस एल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू कैश. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दैट से हम लोग रिडीम करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड विल ब्रिंग द कैश बैलेंस अप, ऐसा उनका कहना है. तो ये डायग्राम उन्होंने दिया है. एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड है. देखो हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. उन्होंने यहाँ से शुरू किया डायग्राम, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं. देखो ये इंपॉर्टेंटली स्ट्रेट लाइन है. ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करता है कि इमीडिएटली कैश नीचे आ जाएगा. फिर देखो नीचे चला गया बैलेंस, तो ये ऊपर लेके आने का है. अगर इन दोनों के बीच में तो कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का नहीं है. देखो इसको रिटर्न पॉइंट कहा जाता है. मैक्सिमम लेवल अपर लिमिट, मिनिमम लेवल इज द लोअर लिमिट. द लोअर लिमिट इज सेट बाय द मैनेजमेंट. तो जैसे हमने डिस्कस किया, इट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिस्क ऑफ द कैश शॉर्टफॉल द फर्म इज विलिंग टू एक्सेप्ट. तो वो कंपनी के खुद के ऊपर है और कंपनी को कितना रिस्क लेना है उसके ऊपर. And this in turn depends upon both excess of the borrowing and consequences of the shortfall. तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी कैश मिल सकता है और दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना खराब हो सकता है. अगर बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है तो लोअर लिमिट ज़्यादा रखने का, बोरोइंग का टाइम ज़्यादा लगेगा, देन इन दैट केस आपको लोअर लिमिट ज़्यादा रखने का. द फॉर्मूला गिवन इन द एग्जामिनेशन, तो ये फॉर्मूला याद रखने का हमको ज़रूरत नहीं है. For Miller-Orr model R, return point is lower limit plus 1/3 spread. Spread is 0.75 into O transaction cost into variance of the cash flow divided by rate of interest. उसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Note, variance and the interest rate should be expressed. Highlight the portion in daily terms.
If the question provides you the standard deviation of the daily cash flow, you need not to square this number to obtain the variance. I'm sorry, you will need to square this number to obtain the variance. यानी स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा तो उसको हमको वेरिएंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. वेरिएंस का ये साइन है और स्टैंडर्ड डिविएशन का ये साइन है. चलो लेट अस रीड फर्दर. The Miller-Orr model controls irregular movement of the cash by the use of upper limit, lower limit on the cash balances. The lower limit has to be specified by the firm. वो subjectively decide होता है. And the upper limit is calculated by the model. Cash balance of the firm is allowed to vary freely between the two limits. अगर उन दोनों के बीच में cash balance का variation होता है ना, तो आपको कुछ करने का नहीं है, ध्यान रखना. But if the cash balance on any day goes outside these limits, any upper limit के ऊपर या lower limit के नीचे, action must be taken. If the cash balance reaches to the lower limit, it must be replenished in some way. Example, by sale of the marketable securities or withdrawal from a deposit account. The size of the withdrawal is the amount required to take the balance back to the return point. तो कितने अमाउंट का रिडम्पशन करने का, सो दैट से यू रीच टू द रिटर्न पॉइंट यानी कि z. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिटर्न पॉइंट यूजुअली सेट बाय द मिलर-ओर मॉडल एज द लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ द डिस्टेंस अप टू द अपर लिमिट, यानी 1/3 ऑफ द स्प्रेड एंड द लोअर लिमिट. यानी ये डायग्राम में क्या, ये पोर्शन. If the cash balance reaches to the upper limit, बहुत ऊपर चला गया बैलेंस, an amount must be invested in the marketable securities. तुमको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, और प्लेस इन अ डिपॉजिट अकाउंट, या तो उसको डिपॉजिट अकाउंट में हमको शिफ्ट करना है. Sufficient to reduce the balance back to the return point. Again, this is calculated by the model as the distance between the upper limit and the return point. The minimum upper cost limit is calculated by the reference of the brokerage cost. यानी ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि स्प्रेड का कैलकुलेशन में हम लोग ओ कॉस्ट पर ट्रांसफर को लेते हैं. होल्डिंग कॉस्ट, वेरिएंस. The model has some fairly restrictive assumption. Example, normally distributed cash flow, but in test, Miller-Orr model found it to be fairly robust and claimed significant potential of the cost saving for the company. तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल है. ये उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो, उसका मतलब कुछ ऐसा होता है. ये जो बेल-शेप का डायग्राम है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी ये जो मीन वैल्यू है ना, उसके आसपास के ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, ऐसा उनका कहना है. That is what's the simple meaning that it has. Test and understanding 3. The minimum cash balance is $20,000 required by Miller-Orr Company, and transferring money to or from the bank costs $50 per transaction. Inspection of the daily cash flow over the past suggests that the standard deviation is $3,000 per day, and hence the variance is the squared standard deviation is 9 million. Rate of interest is 0.03% daily. You're required to make these three calculations. Let us see how to do answer. Chalo, let us have understanding how to do answer. First of all, we'll make the calculation of the spread. Write an answer along with me. Working note number 1. Calculation of spread. It is 0.75 और उसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, into variance into cost per transfer divided by daily rate of interest, और उसका हम लोग क्यूब रूट करेंगे. So raised to 1/3.
स्टैंडर्ड डिविएशन है 3000, कॉस्ट पर ट्रांसफर है $50 डिवाइडेड बाय 0.03% पर डे। उसका क्यूब रूट करेंगे और फिर उसको डायरेक्टली फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो 3000 का स्क्वायर दैट इज 90 lakhs इंटू 50 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.03%। So the answer comes to 1125,000,000 million रेस टू क्या करेंगे 1/3 इंटू क्या करेंगे 3। Now we understand something like this. Everybody is requested to pay attention. Under root of 1000 is 10. Sorry, cube root of 1000 is 10. So we understand that, say, what we can do working like this. Cube root of 10 lakhs, that is 1 million, is 100. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 11,25,000 उसका क्यूब रूट इंटू 1000 इंटू 3 इज द आंसर। ये जो वैल्यू मिलियन टर्म में है ना फ्रेंड्स, उस पर हम लोग क्या किया, वो जो मिलियन है ना उसको निकाल दिया। उसकी जगह हम लोग फाइनल आंसर को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ। सपोज कि हमको 27 मिलियन का क्यूब रूट करना है। सपोज 27 मिलियन का क्यूब रूट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एकदम गौर से सुनो। 27 इंटू 10 lakhs इंटू क्या करेंगे रेस टू 1/3। तो क्या किया जा सकता है 27 इंटू 1/3 इंटू 100 किया जा सकता है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा 3 इंटू 100 दैट इज 300। ऐसा करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। देखो 300 इंटू 300 इंटू 300 and the answer is say the 27 million. So now let us come back to this point. Now again there are 3 zeros that we can see. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 3 जीरो को भी बाहर ले सकते हैं। So it is 1125 का क्यूब रूट इंटू क्या किया जा सकता है 1000। यानी वी अंडरस्टैंड दैट से 1000 है ना अंदर, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। मिलियन है तो 100 से, बिलियन है तो 1000 से, इंटू क्या करेंगे 3 once again. So now we will have the working like this. 1125 उसका हमको क्यूब रूट करना है 3, so it is 10.40 into 1000 into 3, 10.40 into 1000 into 3, that comes to $31,200. Now friends, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोगों को स्प्रेडशीट यूज करने को मिलेगा। सो स्प्रेडशीट में डूइंग दिस आंसर वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर अस। स्प्रेडशीट में हम लोग ये क्यूब रूट का आंसर इजीली कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर में ये 1125 का क्यूब रूट कैसे हो सकता है। अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ।
देखो मुझे क्या करना है, मुझे 1125 का क्यूब रूट करना है। मैं उसका आंसर मान लेता हूं कि x है। सो 1125 इज इक्वल टू x रेज टू 3। x का वैल्यू क्या है मेरे को नहीं पता है। ओके, x रेज टू 3 क्या होगा, जो x का वैल्यू होगा उसके ऊपर x रेज टू 3 होगा। मैं एक 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि x का वैल्यू है 10, 2 मिनट के लिए। सो 10 रेज टू 3, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये कितना होगा 1000 होगा। अगर x 10 है तो x रेज टू 3 क्या होगा 1000। पर मेरे को तो 1125 चाहिए, कोई बात नहीं है, x को बढ़ाओ ना। सपोज कि x का वैल्यू 11 है, क्योंकि 1000 जो है ना वो 1125 से कम है, तो मेरे को x का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 रेज टू 3, सो 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट कम्स टू 1331। So 1125 is falling between say 1000 and 1331. अच्छा, 10 और 11 का डिफरेंस कितना है सर, एक। 1331 और 1000 का डिफरेंस कितना है 331। हम लोग 1125 को बेस लेंगे, I'm sorry 1000 को बेस लेंगे टू कैलकुलेट द आंसर। 1225, I'm sorry 1125 माइनस 1000, यानी कितना होगा 125, यानी 1000 से 1125 गया, यानी कितना 125 से बढ़ा। So this is the rate at which it increases. So 125 divided by 331 into 1, that is the answer. That comes to 0.3776. So 0.38 कर देते हैं। So क्या होगा, 0.38 को हम लोग 10 में ऐड करेंगे, so it is 10.38। तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 10.38। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, 10.38 इंटू 3, आई एम सॉरी, इसका आंसर 10.38, तो क्या होगा 10.38 इंटू 1000 इंटू 3, दैट इज 31140। ऐसा करके भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो देखो अभी अपने पास स्प्रेड आ गया, तो देखो लोअर लिमिट है $20,000, अपर लिमिट है लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, सो 20,000 प्लस स्प्रेड कितना है, स्प्रेड है हमारे एग्जांपल में 31,200। सो $51,200 रिटर्न पॉइंट। लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड इंटू 1/3, 20,000 प्लस 31,200 डिवाइड बाय 3, सो 30400। फ्रेंड्स एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है एवरेज कैश बैलेंस। ऐसा करने से ऑन एन एवरेज हमारा कैश बैलेंस क्या रहेगा, उसका भी एक फॉर्मूला है।
लेट अस सी दैट उन्होंने आगे दिया है या नहीं दिया है। उसका फॉर्मूला होता है 4/3, 4/3 ऐसा करके उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो उसमें क्या करना पड़ता है अपने को, ये 31,200 डिवाइड बाय 3, ये जो आंसर आया ना इंटू 4/3, उसको 20,000 में ऐड किया जाता है। तो इतना ऐसा करने से ना हमारा ऑन एन एवरेज बैलेंस इतना रहेगा, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन। सो स्प्रेड इंटू 1/3 का वैल्यू जो आएगा ना उसको 4/3 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको फिर हम लोग लोअर लिमिट में ऐड करते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं दे रखा उन्होंने तो सिलेबस में नहीं होगा, सो लेट अस नॉट डू दैट। तो सबसे पहले हमको स्प्रेड पूछा था, वो स्प्रेड हमने कर दिया। अपर लिमिट पूछा था, रिटर्न पॉइंट पूछा था। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4। A company sets its minimum cash balance $5,000 and has estimated the following. Transaction cost is $15 per sale और परचेस ऑफ द गिल्ड्स। गिल्ड्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है उसको गिल्ड सिक्योरिटी, एंड दैट टू शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कैश फ्लो इज $1,200 पर डे, दैट इज द वेरिएंस इज 1.44 मिलियन पर डे। ये नहीं भी दे रखा होता तो भी हमको फाइन करना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3% पर ईयर, 0.02% डेली। स्प्रेड पूछा है, यूएल और आरपी पूछा। चलो अपने आप आंसर कीजिए फ्रेंड्स। नाउ लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू आंसर। सबसे पहले हम लोग स्प्रेड करते हैं। राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी। स्प्रेड इज 0.75 into variance of the daily cash flow into cost per transfer divided by daily rate of interest, और जो भी आंसर है उसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, इनटू क्या करेंगे, 3 करेंगे। सो 0.75 into variance is square of 1200 into cost per transfer is $15 divided by daily rate of interest 0.02%। ये जो भी आंसर उसका क्यूब रूट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। So we understand that it is 1200 into 1200 into 0.75 into 15 divided by 0.02%. So it comes to 81 billion। उसका क्यूब रूट करेंगे इंटू 3। 1000 का रूट, दैट इज द क्यूब रूट क्या होगा, 10,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, यानी क्या क्या किया जाएगा, 81 का क्यूब रूट इंटू 1000 इंटू 3। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो 81 उसका क्यूब रूट करेंगे, दैट कम्स टू 4.3267 into 1000 into 3। that comes to 12,918.25। that is the way it can be done। अगर हम लोग डायरेक्टली 81 का करते तो क्या होता, 81 ×
cube root 3, it is 4326.7. तो you can see it is इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4326.7 एग्जैक्टली वो उतना आ जाता है. So this is the way we make the calculation of answer. Okay. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे का कैलकुलेशन. उसमें हम लोग करेंगे अपर लिमिट. इट इज लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड. लोअर लिमिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 5 ऐसा दे रखा है. प्लस 12,980.25. That comes to 17,980.25. उसके बाद हम लोग करेंगे रिटर्न पॉइंट. लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड इंटू 1/3. $5,000 प्लस स्प्रेड कितना है? 12,980.25 इंटू 1/3. $12,980.25 divided by 3 plus 5,000 9326.75. That is the return point. Short-term investment and borrowing solutions. The cash management model discussed above assumed that the funds could be readily obtained when required, either by liquidating the short-term investments or by taking out the short-term borrowing. यानी शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स हम लोग बोरो कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. और जो भी हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको हम लोग तुरंत रिडीम कर सकते हैं. A company must choose from a range of the options to select most appropriate source of the investment or funding. तो हमको क्या करना चाहिए? हमको से जो बेस्ट है उसको हमको सिलेक्ट करना चाहिए. शॉर्ट टर्म कैश इन्वेस्टमेंट. Short term cash investments are used for temporary surpluses. To select an investment, the company has to weigh up 3 potential conflicting objectives and the factors surrounding them. The objectives can be categorized as follows: liquidity, safety and profitability. Liquidity, cash must be available for the use when needed. यानी तुरंत ही हमको कैश पैसा मिल जाना चाहिए जब हमको चाहिए. नो रिस्क ऑफ द लॉस एंड सो द प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स सब्जेक्ट टू अबाउ द एम टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल आफ्टर टैक्स रिटर्न. तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है दैट से मुझे इन्वेस्टमेंट बेचना है और मैंने बेचा, उस पर टाइम गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेफ्टी यानी प्रिंसिपल अमाउंट मेरा सेफ रहना चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स मुझे रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए. ये 3 चीज़ हम लोग समझते हैं. एंड लिसन केयरफुली. उसके अलावा से एक पॉइंट ऐसा है दैट से देयर इज अ टर्म कॉल्ड मार्केटेबिलिटी. So we understand that over here, so there is one more term that is considered to be the marketability. Marketability का मतलब ये होता है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदने जाते हैं और जब हम उसको बेचने जाते हैं तो उसमें प्राइस डिफरेंस जो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिवेल कर रहा है ना, उसको मार्केटेबिलिटी बोला जाता है. आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस. जैसे कि उसको स्प्रेड भी बोला जाता है. आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस कि स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा कि 2 प्राइसेस प्रिवेल करते हैं. लेट अस से दैट द प्राइस इज 2500 एंड 2501. ऐसा 2 प्राइसेस होता है. तो उसको स्प्रेड बोला जाता है ₹1 का.
जिसको इन्वेस्टमेंट बाय करना है ना वो 2501 में बाय करता है, और जिसको सेल करना है ना वो 2500 में सेल करता है। यानी मुझे अभी सेल करना है तो मेरे को 2500 मिलेगा, अभी मुझे बाय करना है तो मुझे 2501 मिलेगा। तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना उतना दैट इज़ नॉट अ गुड मार्केट, ये एफिशिएंट मार्केट नहीं कहलाता है। जितना कम डिफरेंस है ना उसको एफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट दे माइट हैव इंक्लूडेड लेटर ऑन, बट चलो ये तीन चीज़ के ऊपर जो उन्होंने फोकस किया है उसके लिए डिस्कशन करते हैं। एक लिक्विडिटी, यानी आई गिव एन एग्जांपल लाइक दिस कि सपोज आई हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन से वन ऑफ माई फ्रेंड्स से द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इक्विटी शेयर। मैंने मेरे एक दोस्त के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने आपको बोला कि भी मेरे को वो इन्वेस्टमेंट बेचना है, वुड यू लाइक टू बाई इट, मैंने ऐसा आपको पूछा। तो आप मेरे को है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे, सर आपका दोस्त का बिजनेस क्या है, वो कंपनी कितना साल पुराना है, वो कंपनी का रिटर्न्स क्या है, प्रमोटर्स क्या करते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चंस का मेरे को आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर आप सोचोगे एंड यू मे बाय यू मे नॉट बाय। यानी मेरे दोस्त का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इक्विटी शेयर्स आपको बेचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि भी मेरे को इन्फोसिस का शेयर्स आपको बेचना है तो आप खुशी खुशी उसको बाय करते हो, उसमें आपको कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, दैट से इन्फोसिस के इक्विटी शेयर्स में जो लिक्विडिटी है वो दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में नहीं है। तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें लिक्विडिटी लो हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। दूसरा सेफ्टी, अगर मेरे पास एक्सेस फंड्स है और मैंने क्रिप्टो में डाल दिया, क्रिप्टो इजीली बिक तो सकता है पर क्रिप्टो में कितना प्राइस वेरिएशन है भाई, ऐसा बिल्कुल ही चांस है दैट से सपोज मुझे 1 महीने के बाद 1 मिलियन का पेमेंट करना था मेरे सप्लायर को, 1 महीने के बाद 1 मिलियन का पेमेंट करने का था, मेरे पास आज ही 1 मिलियन था। तो मैंने कंपनी को क्या बोला कि चलो हम लोग 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं 1 महीने के लिए, हमको कुछ रिटर्न मिलेगा। कंपनी बोला ठीक है भाई, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता चल रहा है ना आपको रिटर्न मिलेगा हमको। मैंने बोला हाँ हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करवा दिया क्रिप्टो में। 1 महीने के बाद ये जो 1 मिलियन का मेरा इन्वेस्टमेंट है ना उसका वैल्यू है 9 लाख। कंपनी क्या करेगा, कंपनी मेरे को निकाल देगा। कंपनी क्या बोलेगा, अभी ये वो 1 मिलियन का पेमेंट कैसे करेंगे सप्लायर को, वो 1 मिलियन हमने पे कर दिया तो अच्छा रहता। आपका इंटेंशन अच्छा है बट आपका डिसीजन गलत है, हम आपको थोड़ी रख सकते हैं। तो हमको सेफ्टी भी देखना है। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि अमंग द रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटीज जिसमें हमको सबसे ज़्यादा यील्ड मिलता है ना उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो यील्ड के पीछे भागना नहीं है, बट एट द सेम टाइम से कंसिडरिंग अवर मेन ऑब्जेक्टिव, साथ साथ में अगर कुछ रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा ही है, ऐसा उनका कहना है। Ensure you can discuss 3 key objectives affecting the choice. Short-term investment. Short-term investment opportunities present themselves when cash surplus arises. The company's attitude towards risk and working capital management will determine the planned cash holding. The selection deals with the practical aspects of the management of a portfolio short-term investment. Surplus cash comprises of the liquid balances held by the business, which are neither needed to finance current business operation nor held permanently for short-term investment. That is short-term. यानी ये ऐसा सरप्लस है कि जो हमको चाहिए भी नहीं बिजनेस में और ये परमानेंटली शॉर्ट टर्म भी नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द सरप्लस कैश इज टेम्पररी, तो ये जो है ना वो सिर्फ टेम्पररी है। Awaiting employment either in the existing operation or new investment opportunities, whether already identified or not. The temporary period can be of any duration, starting from even 1 day to indefinite future date. यानी कितने तक ये एक्सेस है वो आप लोगों को भी मालूम नहीं है। At which the new investment opportunity may be identified and seized. Where the balances are held temporarily for conversion to other more important business use, absolute priority must be given to the avoidance of the risk over maximization of the return. तो देखो ये लोगों का क्लियर कहना है कि हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम लोग देंगे
अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क को, ओवर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिटर्न, यानी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ऐसा। द यूजुअल प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमम मिक्स between risk and return does not apply over here because the investment is secondary and incidental to the ultimate business use of the asset, not an end of use, that is not an end in itself. तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है कि कुछ रिटर्न मिल जाए साथ साथ में तो अच्छा है, हमको तो मेन इसका यूज करना है। Objectives in the investment of the surplus cash. Each of the three objectives arises so the problems. Liquidity. Are there any penalties for early withdrawal? अगर early withdrawal की वजह से penalty लगता है, then in that case it is a demerit. ऐसे investment को कम priority देना चाहिए। यानी कि मैंने investment वैसे 1 महीने के लिए किया है, पर अगर 15 दिन में मैं investment को withdraw कर लेता हूँ तो मेरे को कितना interest मिलेगा? जो बाकी के टाइम पीरियड के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो उसके लिए मुझे क्या पेनल्टी लगेगा? Is bridging finance is available to fill up any gaps? How long before the sum is needed again? Are there any significant changes in the return as the duration of the investment changes? यानी लोग ऐसा बात कर रहे हैं दैट्स द यील्ड कर्व का बात कर रहे हैं। यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा, अगर हमें 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ 7 दिन के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को मिलता है सपोज की 5% का। मैं अगर 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 6% का। मैं 30 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट रेट मिलता है 6.5% का। ऐसा तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चेंज होगा? दैट इज व्हाट दे प्रोवाइड। टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं। एंड ब्रिजिंग फाइनेंस, ब्रिजिंग फाइनेंस का मतलब क्या होता है? दैट से फॉर द टाइम बीइंग जो हम लोग बोरो करते हैं ना, उसको ब्रिजिंग फाइनेंस बोला जाता है। एट फर्स्ट टाइप द प्रॉब्लम इज सिंपल इनफ। इफ अ कंपनी नोज दैट इट विल नीड द फंड्स इन 3 days or 3 weeks or 3 months, it simply invest them for just that period at the best rate available with safety. यानी अगर हमको क्लैरिटी है ना तो कोई इश्यू ही नहीं है। The solution is to match the maturity of the investment with the period for which the funds are surplus. However, there are a number of factors to be considered. First, exact duration of the surplus is not always known. वो हमेशा पता नहीं होता है। It will be known if the cash is needed to meet loan installment, a large tax payment or the dividend. It will not be known if the need is unidentified or depends upon the build-up of the inventory, the progress of the construction work, or hammering out of the acquisition deal. यानी इन सब की वजह से क्या होगा? दैट से हमको हमेशा ये पता नहीं होता है कि हमारे पास से एक्सेस कैश से कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर लोन इंस्टॉलमेंट के लिए ही है तो हमको पता है कि कितना अमाउंट ऑफ का ईएमआई है और से वो कितने दिन के बाद पे करने वाले हैं। टैक्स का पेमेंट है तो वो भी उसका लिए क्लैरिटी होता है। डिविडेंड के लिए होता है तो भी वो क्लैरिटी होता है, पर वो पता नहीं होता है इफ इट इज अनआइडेंटिफाइड एंड डिपेंड्स अपॉन दैट से हम लोग कितना स्टॉक रखने वाले हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और हैमरिंग आउट ऑफ एन एक्विजिशन डील, यानी हम लोग ऐसे कोई डील में फंसे हुए हैं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रेंड इन द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द मेच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज गिवन अ नेम एज फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उनका कहना ऐसा है दैट से द फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ब्रिजिंग फाइनेंस में बी अवेलेबल to bridge the gap between the time when the cash is needed and subsequent date on which the investment matures. यानी वो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बोरो कर सकते हैं। An investment may not need to held till maturity if either earlier withdrawn is permitted by the terms of the instrument without excessive penalty, or there is a secondary market
to its disposal in that market causes no excessive loss. यानी सपोज कि हमने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट किया, तो कमर्शियल पेपर में क्या होता है, डेट से उसका सेकेंडरी मार्केट है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट में फिर हम लोग बेच सकते हैं और हमको क्या मिल सकता है, कुछ रिटर्न मिल सकता है, ऐसा उनका कहना है. A good example of such investment is certificate of deposit scheme, where the investor lends the bank a stated amount for a stated period, usually between 1 to 6 months, as evidence of the debt and promise to pay the interest. Banks gives the investor a certificate of deposit. There is an active market for CDs issued by the commercial bank and turning a CD into cash easily and cheap. यानी इन लोगों का कहना है से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, वो इजीली आप मार्केट में बेच सकते हो, उसका लिक्विडिटी अच्छा होता है, उसका मार्केटेबिलिटी अच्छा होता है. I just explained the cube root to all of you. It is like 81 then plus 81 raised to 1 by 3. We'll get the answer. फिर जैसे हमको एक करना था 81 बिलियन, तो अगेन उसका हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं. सो 27 उसका 27 रेज टू ब्रैकेट में 1 by 3.